चूंकि वो उस वक्त चर्च जो था पावर ग्रैब में, उन्होंने बहुत जुल्म करना शुरू कर दिए। भाई ये कोई औरत जो है वो लगे कि यार इसके बाल बिखरे हुए और विच है, जला दो, चुड़ैल बन गई है, जला दो। बहुत उन्होंने जुल्म किए, इतने मजालिम किए कि लोग दीन से मुतनफर हो गए, लोग दीन से मुतनफर हो गए। और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई दुनिया की एक ही रियलिटी है, और वो क्या है, जो मुझे नजर आती है। दुनिया की जो रियलिटी है, इट्स ओनली समथिंग दैट आई कैन टच एंड फील। सॉरी, नजर भी आ रहा है कि नहीं? सो आई कैन टच एंड फील दिस माउस, दिस एग्जिस्ट्स। If I cannot touch it, I cannot feel it, I cannot measure it, it's not real. तो उनके लिए रियलिटी वाज ओनली जो जाहिर था। उन्होंने कहा बातिन को हम नहीं मानते। बातिन क्या था उनके लिए? खुदा, फरिश्ते, जहन्नम, जन्नत, जहन्नम, इससे वो दूर हो गए कि वी डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स। क्लियर? That was the foundation of positivistic research. That was the foundation of positivistic research. And modern science भी वहां से, so modern science is all about measuring and objectifying things. कुछ पल्ले पढ़ रहे हैं? समझ आ रही कि नहीं? जी सर। जी 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 सर जी। जो आपको मैंने लिंक दिया हुआ है टू कम्प्लेक्सिटी थ्योरी, उसी चैनल के ऊपर आप देख लें, ओपन सिस्टम की थ्योरी की भी, उसमें बहुत सारे जबरदस्त कोर्सेज हैं फ्री में। उसके अंदर भी वो इस पॉइंट को रेज करता है कि व्हाट इज दी, बल्कि इनफैक्ट व्हाई नॉट शो इट टू यू, ताकि अगेन पाकिस्तान के अंदर जो है ना, देसी बंदे की बात कम मानी जाती है, गोरे की बात ज्यादा मानी जाती है। हाँ जी अब्दुल रज़ाक, सही कह रहा हूं कि नहीं सर? एग्जैक्टली। जो बात गोरा कर देना वो फौरन मानी जाती है, क्योंकि सर वो रियलिटी पे बेस करते हैं, वो assumption. Let me show you what I'm talking about. This is this channel System Innovation. Again, हमारी जनरेशन के पास जो ये आ गया ना, YouTube, इंटरनेट, the access to information. If you're not using them, again, you're not a researcher. और मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि यार यहां से तुम देखना शुरू कर दो। सिस्टम थ्योरी कोर्स, ओके, हियर इट इज। This course is an overview of the foundational concepts within system theory. In particular, it is focused on conveying what we call the systems paradigm, that is the basic overarching principles that are common to all areas of systems thinking and theory. In this video, we'll be giving an overview to what we call the systems paradigm, which is the fundamental set of Okay. some kind of answer to these questions, which will then form the basis, being how does causality work, or philosophical questions. Before any kind of constructive inquiry into the world around us can be conducted, a number of basic philosophical questions need to be answered, including basic ontological questions, such as what is the nature of being, how does causality work, etc. Basic epistemological questions, such as how do we know something and how can we prove that we know it. Every coherent body of knowledge needs to provide some kind of answer to these questions, which will then form the basis for that conceptual framework, shaping how we see the world when using it, and ultimately the kind of answers that we can derive within that paradigm. For example, pre-modern European culture provided answers to these questions based upon a fusion between the work of classical Greek philosophy and the Christian Bible, among others.
This worldview of medieval thought created a hierarchical ontology of things that existed based upon their perceived proximity to God. Those things, such as angels, that were regarded as closest to the perfect being of God, were placed at the top of the hierarchy, with humans below this, animals below them, and so on, all the way down to inert matter that was perceived as being at the lowest level and closest to hell. Within this worldview, epistemological authority or validity was derived from tradition. If it was endorsed by some pre-existing authority, such as the Bible, Monarch, or Aristotle's writing, then it was deemed valid. This is a very simplified, schematic representation, of course, but it helps for illustration purposes. With the rise of the modern era, approximately 500 years ago, a whole new set of philosophical answers were formulated to these fundamental questions that still today form the foundation of our scientific framework. During a period of intense metaphysical questioning in the 17th century, a number of thinkers such as Francis Bacon and René Descartes laid the philosophical foundations to our modern world. These thinkers asked and answered the most fundamental questions about the nature of reality and knowledge, which were further fleshed out in the 18th century. They fundamentally rejected the idea that knowledge of the world around us should be derived from scripture, theology, or authority. हाँ जी, अब मान लिया कि नहीं माना? जी सर, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप बता रहे थे। हाँ, thank God. So this is again, that's why I love this channel. Especially when you go abroad and you go to universities there. हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज में मसला ये, वी हैव साइलोज कि पहले तो बिजनेस के जो पीएचडीज बैठे हो तुम सारे लोग आपस में कोलैबोरेट नहीं करोगे कि फाइनेंस वाले एचआर वाले ये हो। बाहर की यूनिवर्सिटी में ये फायदा होता है कि वो जो पीएचडीज होते हैं वो चाहे जिस फील्ड के हैं, वो क्रॉस सेक्शनल, वो डिफरेंट, यू कुड बी सिटिंग विद अ पीएचडी इन साइकोलॉजी। मेरी जो रूममेट थी वो साइकोलॉजी की पीएचडी कर रही थी, साथ एक फिजिक्स वाला था। दे ब्रिंग डिफरेंट डिसिप्लिन्स टुगेदर. And when you bring those different disciplines together, then you can get insights like this. And this guy, again, he was, I think, in education या जो भी था. So I was very, लेकिन again, he was a Muslim. उसने बड़ी प्यारी बात की कि ईसाईयत जब अरूज पे थी तो यूरोप के अंदर डार्क एज था, और इस्लाम जब अरूज पे था तो मुस्लिम उम्मा was on top. समझ आ रही? He had a very interesting कि Islam again is a belief in both the seen and unseen. Islam is both. ऐसी तो लोड कोई नहीं यार, ये भी गलत आ गया। ओही है चिट्टा जा, मैं तो दिंदा शायद। रज़ा का अपना माइक बंद कर दो, मैं बंद कर देता हूं तुम्हें, ठीक है? So that was a very interesting discussion कि in Islam, when Islam was in proper shape, जब हम वाकई मुसलमान थे तो हम दुनिया पे काबिज थे, और क्रिश्चियनिटी जब that was a different discussion, and he was using that to show how religious discourse or how epistemology in the Muslim earth, क्योंकि उसने फिर बताया कि जो इस्लामिक व्यू था that led to scientists like Khwarizmi, like Ibn Sina. So उन्होंने जो इंकिशाफात किए थे, they were not detached from religion. They were embedded in religion. जो मुसलमान साइंसदान ने, उन्होंने डायरेक्ट अल्लाह मियाँ की बात मानी थी कि दुनिया में जाओ, दुनिया में फिरो और देखो मेरे नेमतें कहां पे। Clear? Again, sorry. So that is the grounds of Newtonian science. जो Newtonian science है, that is what it tries to do. कि रियलिटी को सिंपलेस्ट फॉर्म में शो करना, रियलिटी को सिंपलेस्ट फॉर्म में शो करना। अब अगेन इस फॉर्म में मैं क्यों शो नहीं कर सकता? क्योंकि दिस इज नॉट एन एक्यूरेट डिपिक्शन ऑफ रियलिटी. मे बी दिस माइट बी द मोस्ट सिंपलेस्ट मॉडल, और दिस वुड बी अल्टीमेट एम क्या है कि सबसे सिंपलेस्ट मॉडल बनाओ. हमारे यहां हमें क्या कहते हैं कि मुश्किल से मुश्किल मॉडल बनाओ, डब्बे ज्यादा से ज्यादा डालो. उनको ये नहीं पता कि इतने डब्बे वो क्यों डलवा रहे हैं.
The more dabbas mean more complex model. The more complex model. अगर उन्होंने जो स्पिरिट है, जो रूह है न्यूटोनियन मेथड की फॉलो करनी है, तो उनको चाहिए कि लोगों को कहे कि यार कोशिश करो कम से कम डब्बों में अपने मॉडल को एक्सप्लेन करो. किरण जी सर. समझ आई कि नहीं मैंने जो बात की? जी सर. इट्स क्लियर? जी सर. हाँ जी. I'll pause myself here. Any questions, comments, observations? कोई नहीं है? नो सर, क्लियर है सर, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे. Perfect. डॉक्टर साहब, असल में ना जब आप क्वेश्चन करते हैं और सारी खामोशी होती है तो मैं अक्सर अपनी क्लास में कहता हूँ 2 assumption है. एक, या तो सबको सब कुछ समझ आ गया या किसी को कुछ भी समझ नहीं आया, और एन हम कहते हैं दोनों assumption ठीक है. काम आगे बढ़ता जाता है ना. हाँ, इसको एक फिलॉसफी में कहते हैं श्रोडिंगर्स कैट. बेसिकली वो कहते हैं कि यार अगर एक डब्बे के अंदर आपने बिल्ली बंद कर दी है तो वो बिल्ली तब तक जिंदा भी है और मरी भी हुई है जब तक आप डब्बा उठा के देख ना लें और इसको कंफर्म ना करें कि वो जिंदा है या मरी हुई है. तो हमारे पार्टिसिपेंट सोए भी हुए और जागे भी हुए जब तक मैं इनको वीडियो ऑन करके देख ना लूं या सवाल करके पूछ ना लूं, हाँ जी जागे हुए हो कि नहीं. This is why we have this term called reductionism. That is why we have this term called reductionism. Again, वो जो मैंने आपके साथ वो YouTube का चैनल शुरू किया है, उधर पूरा उसके ऊपर एक वीडियो है on what reductionism is. अभी तक सोशल साइंसेज में जितनी हमने रिसर्च की है that is based on reductionism. मैं ये नहीं कह रहा कि ये रिसर्च गलत है. मैं ये नहीं कह रहा कि ये रिसर्च गलत है. ये रिसर्च, this was very important. It played a very important role in furthering our understanding. समझ आ रही कि नहीं? कि यार पहले आप अगर चीजों को सिंपल लेना, सिंपल. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कोई एग्जांपल भी दूंगा ना, तो जितना वो एग्जांपल सिंपल होगा उतनी ही आपको समझ आएगी. अगर आपको मैं कोई कॉम्प्लेक्स एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगी. तो जो रिडक्शनिज्म का फायदा हुआ था कि उसने दुनिया को सिंपलीफाई किया ताकि हम समझ सकें. बट वी नाउ नीड टू मूव साइंस अहेड. We need to move science ahead. So I am only telling you about reductionism, not to say that it's bad, but to tell you that there is an alternative also. ये बात क्लियर है कि नहीं? Yes sir. Yes sir. Yes sir. मेरे इस डिस्कशन से ये ना अखज़ करना कि यार सर कह रहे हैं कि रिडक्शनिज्म गलत चीज है. No, I'm saying that there is an alternative to it, and that is called non-Newtonian worldview or emergence. That is called emergence. Clear? Yes sir. Now, what is emergence? Emergence occurs when an entity is observed to have properties its parts do not have on their own. ठीक है? You're now not going down कि यार एक चीज को आप तोड़ें. You're looking at it as the body as a whole. Instead of looking inside कि मेरे क्या क्या organs हैं, you're observing my body कि यार how is this body different from its parts. ठीक है? अभी अगर आप मेरा सारे पुर्जे आगे पीछे कर दें, इंडिविजुअली रख दें, वो इंसान नहीं रहेंगे, वो गोश्त रहेगा. ऐसा है कि नहीं? एक जो जानवर आप लेते हैं, जब तक वो जिंदा होता है वो बकरी होती है. जब आप उसको काट देते हैं वो क्या होता है? इट्स गोश्त. इट्स नो लॉन्गर व्हाट इट वाज. तो द कॉन्सेप्ट इज कि जो पार्ट्स दैट मेक द होल, we focus on the whole.
focus on the whole. ये point clear है कि नहीं यहाँ पे? Yes, sir. Perfect. Now, as I said, causal simplicity is a positivist paradigm. Causal simplicity is a positivist paradigm and is based on the assumption that a single tangible reality exists that can be understood, identified and measured. ठीक है? हम जब कहते हैं ना कि यार हाइपोथेसिस टेस्टिंग में एक जो है ना कि भाई आप अगर हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं, then what you are saying that all other explanation there is no explanation of this reality than what I have hypothesized. क्लियर है कि नहीं? जब आप एक मॉडल बनाते हैं, आप बकायदा ये क्लेम कर रहे होते हैं कि this hypothesis is valid and no, there is no other hypothesis that is in line with this thing. समझ आ रही है कि नहीं? जी सर। ठीक है, अब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, r² = a + b + c + d, तो आप कह रहे और बाकी सारा आपने एरर कर दिया. If there is another formula, r² = EFGH, and the outcome is the same, then your hypothesis was inconclusive. So there can be only one model of reality. There can only be one model of reality. That model can be simple or complex, but there will be only one model of reality. Clear? Clear? Yes, sir. Very good. Now, according to causal complexity, first of all, we use critical realism as a paradigm. In causal complexity cannot be explained with the positivistic paradigm. It can be if you push it. But the most suited paradigm with causal complexity is critical realism. Clear? वो research method में सबने most of you would have studied the Saunders book. पढ़ी हुई है कि नहीं? जी सर. Yes, sir. Let me find it. Where is it? Research methods. मेरे पास उसकी तस्वीर पड़ी थी, लेकिन let me find it again. कोई मसला नहीं. Here है. उसका कवर पेज से चाहिए? नहीं, I have it. I have the book with me. I want to show you the किधर चला गया? ताकि आप लोगों को okay, yes, I have it. Research method, RM business or business research methods. Here. This is Saunders book, जो कि तकरीबन हर किसी ने किसी ना किसी वक्त पढ़ा होगा. And उसके अंदर ये हमने देखा होगा. मेरा क्या नहीं? ऑनियन. जी जी. जी सर, इसमें ऑनियन है। Yes, sir. जो आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि हमारी सारी की सारी रिसर्च सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविज्म की फिलॉसफी पे है. ठीक है? आप अगर इसको छोड़ के इधर आ जाए क्रिटिकल रियलिज्म पे, अगेन यू आर डूइंग समथिंग न्यू. आपके पास नॉवेल्टी आ गई है. अच्छा, वही वो जो इजिप्शियन की बात बता रहा था, वो उसने बड़ी मजे की बात की कि यार मुसलमान होते हुए तुम पॉजिटिविस्ट कैसे हो जबकि तुम गैब पे ईमान रखते हो.
समझ आ रही? ये पॉजिटिविज्म, Yes, ये sir. क्रिटिकलिज्म, these are your internal compass. This is your iman, your belief. This is attached to it. तो वो कहता था कि भाई जो बंदा गैब पे यकीन रखता है, he cannot be positivist. Clear? Yes, sir. जी सर. वो बंदा गैब, क्योंकि जब आप कहते हैं ना कि मैं पॉजिटिविस्ट अप्रोच ले रहा हूं, वो जो अगेन ये प्रैक्टिस पाकिस्तान के अंदर बहुत कम है. बाहर जब आप अपना थीसिस लिख रहे होते हैं, उस थीसिस का सबसे अहम पहलू जो होता है आपकी फिलोसफिकल स्टैंस होता है कि आपने ये फिलोसफिकल स्टैंस क्यों उठाया है. Again, I have invigilated on so many theses. In Pakistan, most researchers avoid this topic. वो इंक्लूड ही नहीं करते. जो आपसे मैंने पूछा था ना कि why do you अच्छा एग्जैक्ट सॉरी, अभी कोई जवाब दे सकता है मुझे कि why we use SEM, स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग? अभी जो मैंने आपको इतना कुछ पढ़ा ली है, can now somebody answer why we are using structural equation modeling? जो again in light of what I just taught you, and I guarantee बुरहान साहब को मैं पकड़ लूंगा और सिफारिश कर दूंगा कि आपको A ग्रेड दिया जाए अगर आपने सवाल का जवाब दे दिया. जी बुरहान साहब. डॉक्टर साहब गारंटी ये सब काजल डायरेक्ट एक ही सिफारिश करूंगा अगर इस सवाल का जवाब मुझे दे दे. ये सर वेरिएबल का कॉजल रिलेशन चेक करने के लिए हम करते हैं सर. मैंने अपनी पूरी डिस्कशन में वेरिएबल का नाम ही नहीं लिया. मैंने पूरी डिस्कशन में कहीं वेरिएबल का नाम लिया? हाँ जी. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. भाई लोगों, Probably इसलिए कि उसमें जो हम कुछ कॉन्स्ट्रक्ट स्टडी कर रहे होते हैं वो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं होते. नहीं बेटा, आप स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग इसलिए यूज कर रहे होते हैं बिकॉज यू वांट टू मॉडल कंप्लेक्सिटी. बिकॉज यू वांट टू मॉडल कंप्लेक्सिटी. ठीक है? ठीक है सर. जो बेसिक रिग्रेशन एनालिसिस है, दैट इज वेरी सिंपल. दैट इज फॉर सिंपल मॉडल. Because you want to model complexity, that's why you use structural equation modeling, because SEM allows to develop complex models. Clear? Yes sir. Does it make sense now? जी सर. सिर्फ जी सर. भाई बात में जो मैं बात बता रहा हूं उसमें कोई वजन भी है कि नहीं? Why did we move from regression? This was 2005-6. उसमें हर कोई बस रिग्रेशन मॉडलिंग करो. हम रिग्रेशन से स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग पे क्यों गए? Because we moved from simple models to complex models. SEM allows you to model complex reality or develop complex models. Clear है? And the other reason you use स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग, इधर गया, बंद कर दिया, ये रहा, is because you have adopted a positivistic stance. You have adopted a positivistic stance. Clear है कि नहीं? जी सर. Now, I am inviting you to something new. That is to take a critical realist stance. It is to take a critical realist stance. Clear? Again, जब मुझे critical realism के बारे में मैंने पढ़ा तो मैंने कहा हाँ, अब
अब रियलिटी के साथ अब जो है ना, बिकॉज मैंने आपको शुरू में क्या बताया, आई डिड नॉट बिलीव दैट रियलिटी कैन बी क्वांटिफाइड, दैट जो मुझे पता नहीं था, वो क्या नहीं था मुझे पता, मुझे ये नहीं था पता कि मैं पॉजिटिविस्ट नहीं हूं। आई एम अ क्रिटिकल रियलिस्ट, आई एम अ क्रिटिकल रियलिस्ट, आई एम नॉट अ पॉजिटिविस्ट। तो जब मुझे वो क्रिटिकल रियलिज्म मैंने पढ़ा, बैस्कार को पढ़ा, ठीक है, द गाय हु, देन आई वाज लाइक ठीक है, आई कैन मॉडल रियलिटी with critical realism a lot better, and that is aligned with who I am. Where is it? Where is presentation? Okay. Where am I right now? So that is why I chose critical realism, because for me it was a better explanation of reality. It was a better explanation of reality. And what this reality is that इसकी जो सबसे common explanation है is that there are unobservable structures that cause observable events. There are unobservable structures that cause observable events. आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, साथ वाली गाड़ी में बंदा है, दो गाड़ियां खड़ी हैं, वो माई आती पैसे मांगती है, आप पैसे देते हैं कि नहीं देते? हाजी सलाम खान पैसे देते हो कि नहीं? यस सर, बिल्कुल। क्यों देते हो? वो मांग रहे हैं ना। तो भाई वो तो मांग रहे हैं, तुम क्यों दे रहे हो? Because this is solution for my problem. He has a solution for my problem. नहीं सॉरी, पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं? एक भिखारी तुम्हारे पास आया है गाड़ी के ऊपर, तुमसे भीख मांग रहा है, पैसे मांग रहा है, और तुम उसे पैसे देते हो, क्यों देते हो उसको पैसे? अच्छा, ठीक 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 है, पॉइंट अभी मैं समझ गया। हाँ, सिंपैथी में सर। सिंपैथी, ठीक है। अल्ट्रूइज्म, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अल्ट्रूइज्म। हाँ जी अंजार। अल्लाह की रजा के लिए सर। अल्लाह की रजा के लिए, ठीक है। मैं नहीं देता, क्या मैं अल्लाह की रजा नहीं चाहता, या मैं अल्ट्रुइस्टिक नहीं हूं? सर आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी अपनी इस बारे में थिंकिंग है। सी, मैं और आप एक जगह पे खड़े हैं, एक थर्ड पर्सन हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके पास वो माई आई, आपने पैसे दिए, मैंने पैसे नहीं दिए, that person can only observe our observable events. These are, ये जो एग्जाम्पल दे रहा हूं, what is that? पैसे देना क्या है? That's an observable event. That's an observable event. But what is causing that person? What is causing that action? What is causing that is unobservable structures. Unobservable structures. For example, दीन आपको क्या प्रोवाइड करता है? What does religion offer you? Sir, guidance, guideline. It offers you a सिला रमी। अच्छा, it offers you a structure to live your life according to. आपकी जिंदगी को एक तरतीब देता है, ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही है जी सर। मैं जानबूझ के अपने अल्फाज का चुनाव किया है। Religion offers you a structure to live your life. That structure defines what you will do and will not do. ठीक है? See,
that means religion is the unobservable structure. Clear? Yes, sir. जी sir. Yes, sir. Clear? Yes, sir. Yes, sir. और पॉजिटिविस्ट मियां जो है, पॉजिटिविस्ट मियां डज नॉट बिलीव इन रिलीजन. ठीक है. तो जो क्रिटिकल रियलिस्ट है वो यही कहते हैं कि सोशल वर्ल्ड कैन ओनली बी अंडरस्टूड only if people understand the structures that generate events. So social reality is visible, and there is an aspect of reality which is not visible, which is underneath it, which causes social reality. That is critical realism in its simplest form. Clear hai? Yes, Is this sir. clear? Yes, sir. Okay. Let's go forward. So basically, जो आपको मैंने कहा ना कि रियलिटी, विजिबल रियलिटी एंड इनविजिबल, तो रियलिटी के हम कह रहे हैं देयर आर लेयर्स ऑफ रियलिटी. What we are saying is that there are layers of reality. Clear कि नहीं? There are layers of reality. इसको इसका जो टेक्निकल टर्म है ना, इसको कहते हैं डेप्थ ऑन्टोलॉजी. डेप्थ, गहराई. This is also called depth ontology. So basically, empirical domain is what is observable to you. Empirical domain is what is observable to you. मिसाल के तौर पे यहाँ पे दिखा रहे हैं तो कील ने जो है वो हथौड़े ने कील टेढ़ा कर दी है. Empirical domain is where you experience things. Empirical domain is where you experience things. मैं जो आपको कहा ना कि थर्ड पर्सन हम दोनों को देख रहा है कि यार हमने, एक ने पैसे दिए एक ने पैसे नहीं दिए. He experienced that thing there through observation. Then you have the actual domain जहां पे events और action occur होते हैं. What was an event? पैसे देना, या action क्या था? पैसे ना देना. And there is real domain, structures. What structures are driving you? Book का source भी दिया हुआ है. You can find it afterwards. I don't think this book is available here. I'll send you, if you want, I'll send you. ये भी, there's a YouTube video about this thing. I'll send you that. Here's another example. ये जरा आप गौर से देखें. एक बार की बात है, कुछ साइंटिस्ट ने मिल करके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने क्या किया कि एक बहुत बड़ा सा पिंजरा लिया, उसके अंदर 5 बंदरों को रख दिया और वहां पर एक सीढ़ी लगा दी. उस सीढ़ी के टॉप पर कुछ केले रख दिए. फिर उन साइंटिस्ट ने क्या किया कि जैसे ही कोई भी बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ता केलों तक पहुंचने के लिए, तो ऊपर से ठंडे पानी की बारिश करने लग जाता. तो जैसे ही वो ठंडा पानी गिरता उस बंदर के ऊपर जो कि सीढ़ी पर चढ़ रहा था, वो फटाफट से नीचे आता तो पानी बंद हो जाता. फिर दोबारा से कोई और बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ता उन केलों तक पहुंचने के लिए, दोबारा से यही होता. दोबारा से ऊपर से ठंडे पानी की बारिश होती, वो बंदर जैसे ही नीचे आता दोबारा से बारिश बंद हो जाती. तो बंदरों ने इसका मतलब ये निकाला कि जैसे ही कोई भी सीढ़ी पर चढ़ता है तो ऊपर से ठंडा पानी गिरता है. फिर उसके बाद में जैसे ही कोई भी बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश भी करता तो बाकी के बंदर सब इकट्ठे होकर के उसको पकड़ते, उसको मारते, उसको पीटते और उसको नीचे गिरा देते. फिर दोबारा कोई कोशिश करता, दोबारा उसके साथ भी ऐसा ही होता. फिर उन साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन 5 बंदरों में से एक बंदर को उस पिंजरे में से निकाला और उसकी जगह एक नए बंदर को उस पिंजरे के अंदर डाल दिया. अब उस बंदर को नहीं पता था कि यहाँ पर क्या खेल चल रहा है. उसको जैसे ही सीढ़ी के ऊपर वो केले नजर आए, वो फटाफट से उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगा. अब की बार साइंटिस्ट ने कोई बारिश नहीं करी, लेकिन फिर भी जो बाकी के बंदर थे उन्होंने इसको पकड़ा, सीढ़ी से नीचे उतारा और मारते पीटने लगे. इस बंदर को समझ नहीं आया कि मेरे को क्यों मारा जा रहा है, तो उसने दोबारा कोशिश करी. जैसे उसने दोबारा कोशिश करी, दोबारा से उन 4 बंदरों ने वही किया. तो अब इस नए बंदर के दिमाग में क्या बैठ गया कि सीढ़ी पर चढ़ना मना है, अगर सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो मार पड़ती है.
वो सीढ़ी पर चढ़ना क्यों मना है और क्यों मार पड़ती है वो उसको नहीं पता था। उसके दिमाग में ये बैठ गया कि इस सीढ़ी पर नहीं चढ़ना है, ना किसी को चढ़ने देना है। फिर दोबारा से हम साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो पुराने 4 बंदर थे उसमें से एक बंदर को निकाला और एक नए बंदर को उसकी जगह पर डाल दिया। अब इस नए बंदर ने भी वही किया जो इससे पहले वाले ने किया था, यानी कि वो भागता हुआ गया, उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करी, उन केलों तक पहुंचने की कोशिश करी, बाकी 4 इकट्ठे हो गए और उन्होंने उसको मारा पीटा, सीढ़ी से नीचे गिरा दिया। उसको कुछ समझ नहीं आया, उसने दोबारा कोशिश करी, दोबारा उसके साथ यही हुआ और अब इस बंदर के दिमाग में भी यही बैठ गया कि सीढ़ी पर चढ़ना मना है और सीढ़ी पर चढ़ने से मार पड़ती है। फिर साइंटिस्ट ने एक एक करके जो पुराने 3 बंदर बचे हुए थे उसमें से भी एक एक करके उन बंदरों को निकाला और उनकी जगह पर 3 नए बंदर आ गए। अब ये 5 बंदर नए थे और किसी को भी ये नहीं पता था कि उस सीढ़ी पर चढ़ना मना क्यों है, लेकिन उन सबके दिमाग में बैठा हुआ था कि सीढ़ी पर चढ़ने से मार पड़ती है। तो कोई भी कोशिश नहीं कर रहा, जबकि अब कोई ठंडे पानी की बारिश भी नहीं हो रही थी। वो चाहते तो आराम से सीढ़ी पर चढ़ते, केले तोड़ते। सॉरी, हाँ जी। मुझे पहले मैं इसकी वीडियो यूज करता था पुरानी, आज सुबह मुझे ये संदीप साहब की वीडियो मिली है, बहुत खूबसूरत एनिमेशन की हुई इसने। आई यूज दिस एग्जाम्पल इन ऑलमोस्ट ऑल माई कोर्सेज ऑन HR, चाहे मैं कल्चर के बारे में बता रहा हूं, चाहे मैं लर्निंग के बारे में बता रहा हूं, चाहे मैं चेंज मैनेजमेंट के बारे में बता रहा हूं, रेजिस्टेंस टू चेंज, एवरीथिंग। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स और इस एग्जाम्पल को मैं हर जगह फिट कर सकता हूं और आज इसको मैं फिट करने की कोशिश करूंगा इन ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज क्रिटिकल रियलिज्म। आप अज्यूम करें ये, अच्छा कहानी सबको सबने देख ली, समझ आया कि क्या हुआ है, एक्सपेरिमेंट क्या था? जी सर। दाऊद खान, कैन यू सिंपली रिपीट हुआ क्या है? यस सर, एक पंजरे में बंदरों को डाला था और ऊपर एक सीढ़ी लगी हुई थी, सीढ़ी के ऊपर केले लगे थे और जब पहला बंदर ट्राई करता था तो उसके 12 की पानी। another example of this thing. I forgot कि किसने कहा था टीवी पे, या तो वो मुस्तनसर हुसैन तारड़ या इनमें से कोई था। वो कहता है कि हम एक गांव गए खाना खाने, खाना गए तो उन्होंने खाना रखा, साथ डंडा रख दिया बड़ा सा, और कहते मैं फौरन परेशान हो गया कि ये क्या है, ये इन्होंने मुझे खाने के बाद चित्रौल भी करनी है कि ये डंडा क्यों रखा है। तो उस बंदे बड़ा परेशानी से फिर बाद में पूछा कि यार ये डंडा क्यों रखा है, तुम जब भी खाना लाते हो साथ डंडा भी ले आते हो, इसका क्या मतलब है? कहते यार हमें कोई पता नहीं, हमारे माँ बाप को देखा है, वो इस तरह का हमारा रिवाज है, क्यों है कोई पता नहीं। तो उस बंदे को भी मेरी तरह कीड़ा था, उसने कहा कि यार कोई बुजुर्ग बैठा हुआ है उससे पूछो। वो पूछते पूछते चले गए कि बुजुर्ग मिला, बुजुर्ग से पूछा हाँ जी आपके दौर में? कहता हमारे यहाँ उस वक्त रखते थे लेकिन हम छोटी सी डंडी रखते थे। बाद में पता चला कि भाईजान वो शुरू में एक तिनका रखते थे जो कि टूथपिक के लिए यूज होना था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो तिनके से डंडा बन गया और किसी को पता नहीं है। दिस इज हाउ कल्चर प्रोपिगेट्स। You're doing things and you don't know why you're doing it. ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है। ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने का एक तरीका जो है वो क्या कहते हैं, रस हो जाता है अंदर, इट गोज इनटू योर डीएनए कि भाई इस इदारे में काम ऐसे ही होने। जैसे हमारी सरकारी इदारों में बंदा अगर कोई 5-10 रुपए ना लेना, वो कहता है भाई काम होना ही नहीं है। दैट इज एन एस्टैब्लिश्ड कल्चर। अब आपने सोचना है कि मैं आपको बुलाता हूं बिल्कुल इस एक्सपेरिमेंट के एंड में। उसने कहा कि एक्सपेरिमेंट के एंड में 5 बंदर हैं और ऊपर से कोई पानी नहीं आ रहा और केले लगे हुए, बंदर केले नहीं खा रहे। अगर आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि बंदर केले नहीं खा रहे, अब आपको मैं पूछता हूं, यूज क्वांटिटेटिव टेक्निक, यूज quantitative technique to tell me why are they not eating the bananas। क्या करोगे आप, कैसे मॉडल करोगे ये बिहेवियर? हाँ जी, तो एक एक करके सारे भाग रहे हैं। अगर आप पाकिस्तानी रिसर्चर हैं तो आप एक सर्वे निकालेंगे, उनसे पूछेंगे हाँ जी व्हाट फ्रूट डू यू लाइक, व्हाट कलर ऑफ फ्रूट डू यू लाइक,
व्हाट टेस्ट ऑफ फ्रूट डू यू लाइक, और फिर आप उसको मॉडल करेंगे कि भाई अगर केले का रंग उस कलर की प्रेफरेंस से मिलता है जो उसका फेवरेट कलर है तो वो केला खाएगा। अगर उसको जायका अच्छा लगता है कि मीठा होना चाहिए ज्यादा ये कम, सो द टेस्ट preference will determine whether she will eat banana or not. Does that make sense? ऐसा ही करोगे कि नहीं करोगे? जी सर। और अगर तुम क्वालिटेटिव रिसर्चर हो तो क्या करोगे? एक एक बंदर बिठा के उसका इंटरव्यू लेना शुरू करेगा। हाँ जी बंदर मियां बता, केला आपके लिए क्या है? What is banana for you? I want to dig deep. What is banana for you? ठीक है, यही करोगे। एग्जैक्टली सर। लेकिन दोनों केसेस में आप क्या न्यूज़ देखोगे? What will you not focus on? हम ये चेक करेंगे सर वो बनाना क्यों नहीं खा रहे, रीजन फाइंड आउट करेंगे कि इसके पीछे क्या रीजन है कि वो बनाना नहीं खा रहे। उन 5 बंदर को उस वक्त पता है कि रीजन क्या है? नो सर, नहीं पता है उसको, उनको सर नहीं उनको वो एक उनके माइंड सेट में एक चीज डेवलप हो गई है कि आप सीढ़ी पे चढ़ेंगे कि तो आपको मार पड़ेगी या बारिश बरसेगी ऊपर से ना। आखिरी 5 बंदरों में पानी नहीं देखा हुआ सर वो बताएंगे जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, जो अक्सर में जो मेन पॉइंट है वो उन्हें मालूम ही नहीं। वेरी गुड किरण। सो दैट इज वेयर critical realists are different from quant and qual people. यहां पे empirical domain क्या है? जो बंदर मार खा रहा है, जो बंदर मार खा रहा है, that is the empirical domain. वो मार क्यों खा रहा है? So the empirical domain is कि वो मार खा रहा है। वो मार क्यों खा रहा है? दैट इज द एक्चुअल डोमेन। कि यार वो मार तब खाता है जब वो सीढ़ी की तरफ जाता है, वो मार तब खाता है जब वो सीढ़ी की तरफ जाता है। लेकिन इस रियलिटी को आप तब तक समझ नहीं सकते जब तक आपको पता ना हो कि असल वजह क्या है। जब तक आपको वो अनऑब्जर्वेबल स्ट्रक्चर पता ना हो, आप इस रियलिटी को समझ नहीं सकते। हाँ जी जी सर समझ यार, इस मौके पे वाह वाह होनी चाहिए, कोई तालियां होनी चाहिए, कोई बंदा कोई आगे से रिएक्शन देता है। सबको रोजा लगा हुआ है। वो किधर है अब्दुल रज़ाक? सर और रज़ाक साहब का मैसेज आया कि लाइट चली गई है तो उनका नेट का इश्यू चल रहा है, तो वो बार बार लॉग इन हो रहे हैं, तो वो ये अभी आ गए हैं, ये आ गए हैं सर। लॉकडाउन है ये अब्दुल रज़ाक साहब अभी आ, वो लाइट का थोड़ा इशू आ गया इसलिए बार-बार कभी डिस्कनेक्ट हो रहा है। अब्दुल रज़ाक, मैं कह रहा हूं कि आपकी क्लास के अंदर किसी को अप्रिशिएट करना नहीं आता। सर एक्चुअली मसला ये है कि जब वो चीजें एंजॉय करना शुरू करता है, बंदा कहता है कि ऐसा ना हो कि ये स्टॉप कर जाए, तो ये अभी सेशन के एंड पे देखिएगा, ये माशाल्लाह ये शो करता है कि बहुत ही वो एंजॉय कर रहे सेशन। देख, मुझे पता था कि अब्दुल रज़ाक जो है उसको आर्ट आता है। सर तो को सीखे है तो शागिर्द ही रहेगा सारी उम्र। क्लियर? सर अपना इनबॉक्स चेक कर लो। मैं तुझे आग करता हूं शागिर्दी से, ठीक है ना? व्हाट इज, लेट मी ब्रिंग यू बैक टू, अच्छा मजे की बात यह है कि हम 2.5 घंटे हो गए, मैं अभी तक जो है ना आपको असल टॉपिक पे नहीं ले गया है, और आज आपने कहीं जाना भी नहीं है। सर ये आप बेस बना रहे हैं, हमें पता है नेक्स्ट सेशन में आप उस पे आएंगे। ना बेस नहीं बना रहे, एक ही सेशन है। डॉक्टर साहब एक ही सेशन है कि 2 सेशन है? डॉक्टर साहब
लेकिन आप इनको वो पिछले उसमें ना जुनैद साहब ने भी मिसाल दे दी थी जोगी के, हम तो उसको मदारी बोलते हैं ना, मेले वाला, कि मदारी ने आखिर में जो है वो करतब दिखाना है हकीम ने, लेकिन वो सारे मेडिसिन बेचने के बाद जाता है अगले मेले पे बात करेंगे। तो ये अगला मेला नहीं है। वो असल में वो फिल्म के ट्रेलर के अंदर वो सीन मैंने दिखा दिया, वो सीन आखिर में है। ठीक है, वो अब्दुल रज़ाक जो है ना, सीन देखने के लिए फिल्म आगे कर देता है। मैं चाह रहा हूँ कि वो पहले सारी फिल्म देखे फिर वो आखिरी सीन पे आए। बाकी लोग तो सिस्टम की वजह से जाते हैं, वो जानबूझ कर चला गया। उसने कहा मुझे पता है, आपको जानता था कि कितनी देर लगाएगा असल बात पे आने के, है ना। उसने कहा बाद में आ जाता हूँ। तो बाहर anyway, in any case, it is quite interesting and people are listening very carefully. Perfect. Thank you so much. Now, जो GLM और नेट इफेक्ट मॉडल्स है, उनकी स्टार्ट क्या है? कॉजुअल सिंप्लिसिटी पे, ठीक है, बट यू कैन मॉडल कंप्लेक्सिटी इन देम, ठीक है। अगेन जस्ट रिपीटिंग व्हाट आई जस्ट सेड प्रीवियसली, द स्लाइड जस्ट रिपीट्स दैट कि व्हाट इज नेट, यानी आपको अगर आप लीनियर मॉडल यूज कर रहे हैं, आपको कोशिश करके उसके अंदर कंप्लेक्सिटी लानी पड़ेगी। लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, अब हम आ गए असल टॉपिक पे, कि जो सेट थ्योरेटिक मेथड्स, QCA qualitative comparative method is also called a set theoretic method or a configurational method. इनका बुनियादी फायदा क्या है कि ये सिरे से ही they hypothesize causal complexity and can be simplified only with positive evidence. यहां पे बुनियादी तौर पर हम ये assumption लेके आगे बढ़ते हैं कि reality is complex, ठीक है। GLM लीनियर मॉडल में हम बुनियादी assumption क्या लेते हैं कि reality is simple। यहां पे हम बुनियादी assumption ही ये लेके आगे चलते हैं कि reality is complex। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। I don't know why लाइन डबल हो गई यहाँ पे। I can just escape this here and edit and delete, ठीक है। present वैसे जो सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रहा हूं उसका नाम, इट्स अ वेबसाइट कॉल्ड canva.com। इट्स अ फ्री वेबसाइट जिसके ऊपर आप प्रेजेंटेशंस बड़ी आराम से बना सकते हैं। इफ यू वांट टू अगेन, आप बिकॉज यू आर ऑल टीचर्स, अगर आपने पावरपॉइंट नहीं यूज करना, दिस इज अ वेरी गुड अल्टरनेटिव टू इट। सर काइंडली रिपीट करते हैं, कौन सी साइट है ये? आई विल पुट इट इनटू द चैट। canva.com, sorry, canva.com, ठीक है। ये सिर्फ वो प्रेजेंटेशन के लिए है। ये जो ये तीर मीर बना रहा हूँ, ये और सॉफ्टवेयर है, दिस इज ओनली फॉर मैक, ठीक है। नाउ सो एज आई सेड, वो पूरी मैंने कहानी क्या बनाई, दास्तान, वो जो सारा तमहीद बांधी, किस बात पे तमहीद बांधी? मैंने सारी तमहीद यही बांधी के QCA क्यों एक अच्छा अल्टरनेटिव है, बिकॉज QCA अज्यूम यही करता है कि रियलिटी इज कॉम्प्लेक्स। क्लियर? Because QCA assumes that reality is complex. That is why QCA is such an interesting new and emerging methodology जो कि अभी social sciences में आ रही है। Clear? QCA offers real alternative to conventional practices. It is not a compromise between qualitative and quantitative research, but rather transcends many of their respective limitations. आपने रिसर्च मेथड का कोई भी कोर्स पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा उसके अंदर कि भी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ये हैं, ये इनके फायदे हैं, ये नुकसानात हैं। क्वालिटेटिव टेक्निक्स ये इनके फायदे हैं, ये इनके नुकसानात हैं। QCA जो है उनके फायदे उठाता है और उनके नुकसानात को
साइड पे करके नई मेथोडोलॉजी बनाई गई है। क्लियर? जी सर। reply sorry give me a second, एक वो one of my clients is calling me, just एक मिनट। Okay, sorry. Again, consultants के लिए clients जो है ना, we don't risk. Now, as I said, जब भी मैं QCA कहीं पे पढ़ाता हूं, तो जो सबसे पहली चीज आ जाती है कि यार इसका नाम है क्वालिटेटिव है तो ये क्वालिटेटिव ही होगा, बट इट्स नॉट क्वालिटेटिव, इट्स बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। इसके अंदर सॉफ्टवेयर यूज होता है, डाटा कलेक्ट होता है, एनालिसिस होता है। वो एनालिसिस किस तरह होता है दैट्स डिफरेंट, बट इट इज क्वांटिटेटिव, बट इट हैज फीचर्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च इन इट, एंड आई विल डिस्कस इट। Again, as I said, what is the problem? Okay, GLM is deemed problematic because it assumes away causal complexity. ठीक है? And instead looking at linear, additive, and independent causal forces. Again, this is I'm repeating here to make that point more and more.